सभी को आदाब। मेरे ब्रांड चैनल इजी आईटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि आप यहां नए हैं तो मैं ज़फ़र हूं और मुझे खुशी है कि आप यहां आए। इस चैनल पर हम कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, शैक्षिक और प्रेरक वीडियो के बारे में जानकारी देते हैं। यदि आप में जुनून है और आप नई चीज़ें सीखना चाहते हैं या बस थोड़ी सी प्रेरणा की ज़रूरत है तो आप सही जगह पर हैं। इसलिए सब्सक्राइब बटन को दबाना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य के वीडियो में आप किसी भी जानकारी से न चूकें। इजी आईटी एजुकेशन की जांच करने के लिए धन्यवाद। Hey there everyone, welcome to my brand channel Easy IT Education. If you are new here, I am Zafar and I am so glad you stopped by. On this channel, we dive into computer technology, educational and motivational videos. If you are passionate about and want to learn new things or just need a bit of inspiration, you are in the right place. Make sure to hit that subscribe button so you don't miss out on any of the fun. I love engaging with you all, so feel free to drop a comment below to say hi or let me know what you would love to see in future videos. Thanks for checking out Easy IT Education. Let's get started. हाउ टू यूज हैश साइन इन एक्सेल। एक्सेल में हैश साइन का उपयोग कैसे करें। ओवरव्यू। द हैश साइन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लुक सिंपल but it plays several important roles depending on how and where it is used. Whether you are formatting numbers, working with formulas, or encountering error messages, the hash symbol appears frequently. Understanding its different uses can help you troubleshoot problems, reference dynamic data, and present your numbers clearly. This guide will walk you through the key scenarios where the hash sign is used in Excel and how to handle or apply it effectively. अवलोकन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हैश साइन सरल लग सकता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग कैसे और कहाँ किया जाता है। यह कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है, चाहे आप संख्याओं को फॉर्मेट कर रहे हों, फॉर्मूलों के साथ काम कर रहे हों या त्रुटि संदेशों का सामना कर रहे हों। हैश चिन्ह अक्सर दिखाई देता है। इसके विभिन्न उपयोगों को समझने से आपको समस्याओं का निवारण करने, गतिशील डेटा का संदर्भ देने और अपनी संख्याओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने में मदद मिल सकती है। यह मार्गदर्शिका आपको उन प्रमुख परिदृश्यों के बारे में बताएगी जहां एक्सेल में हैश चिन्ह का उपयोग किया जाता है और इसे प्रभावी ढंग से कैसे संभालना या लागू करना है। In Excel, the hash sign has a few specific uses in formulas and references. Number 1, error indicators. It often appears in error messages such as number A hash div divide by 0. This error occurs when a formula attempts to divide a number by 0. Number B hash n oblique A indicates that a value is not available for a function or formula. Number C hash value note of exclamation occurs when the wrong type of argument or operand is used in a formula. Number D hash name question marks.
This error appears if Excel does not recognize text in a formula, often due to misspelling or the use of names that have not been defined. Number two, dynamic array formulas. If you are using Excel 365 or Excel 2021, which supports dynamic arrays, you might see the hash sign in a way to reference all results from an array formula. For example, if you have a formula in A1 that returns multiple values, referencing A1 hash using the hash sign will return all those values in adjacent cells. Number three, cells references. In structured references, for example, when working with Excel tables, the hash sign can denote that you are working with a structured range. For example, table 1, column 1 hash headers refers to the header of column 1 in table 1. Number 4, range references. A single hash sign can also denote a specific type of reference when combining ranges in table references or array formulas. Understanding these uses can help you interrupt errors and enhance your formula writing in Excel. एक्सेल में हैश चिन्ह के सूत्रों और संदर्भों में कुछ विशिष्ट उपयोग हैं। नंबर 1, त्रुटि संकेतक। यह अक्सर त्रुटि संदेशों में दिखाई देता है, जैसे नंबर ए ड्यू डिवाइड बाय 0। यह त्रुटि तब होती है जब कोई सूत्र किसी संख्या को शून्य से विभाजित करने का प्रयास करता है। नंबर बी हैश एन ऑब्लिगे। यह इंगित करता है कि फंक्शन या सूत्र के लिए कोई मान उपलब्ध नहीं है। नंबर सी हैश वैल्यू नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। तब होता है जब किसी सूत्र में गलत प्रकार का तर्क या ऑपरेंड उपयोग किया जाता है। नंबर डी हैश नेम क्वेश्चन मार्क्स। यह त्रुटि तब दिखाई देता है जब एक्सेल किसी सूत्र में टेक्स्ट को नहीं पहचानता है, अक्सर गलत वर्तनी या ऐसे नामों के उपयोग के कारण जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है। नंबर 2, डायनेमिक एरे सूत्र। यदि आप एक्सेल 365 या एक्सेल 2021 का उपयोग कर रहे हैं जो डायनेमिक एरे का समर्थन करता है, तो आपको एरे सूत्र सभी परिणामों को संदर्भित करने के लिए हैश चिन्ह दिखाई दे सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास A1 में एक सूत्र है जो कई मान लौटाता है, तो A1 हैश को संदर्भित करने यानी हैश चिन्ह का उपयोग करके से आसन्न कक्षों में वे सभी मान वापस आ जाएंगे। नंबर 3, सेल संदर्भ। संरचित संदर्भों में, उदाहरण के लिए एक्सेल तालिकाओं के साथ काम करते समय, हैश चिन्ह यह दर्शा सकता है कि आप संरचित श्रेणी के साथ काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए टेबल 1 कॉलम 1 हैश हेडर्स टेबल 1 में कॉलम 1 के शीर्ष लेख को संदर्भित करता है। नंबर 4, श्रेणी संदर्भ। तालिका संदर्भों या सरणी सूत्रों में श्रेणियों को संयोजित करते समय एक एकल हैश चिन्ह भी एक विशिष्ट प्रकार के संदर्भ को दर्शा सकता है। इन उपयोगों को समझने से आपको त्रुटियों की व्याख्या करने और एक्सेल में अपने सूत्र लेखन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। कंक्लूजन,
In summary, the hash sign in Excel serves several important functions. Number one, error indicators. It denotes various error types in a formula, helping users diagnose issues like division by zero or missing values. Number two, dynamic array handling. In Excel versions that support dynamic arrays, it allows users to reference all results from an array formula. Number three, structured references. In table references, it indicates specific elements such as headers or entire columns within structured tables. Number four, range references. It can also be used to denote certain types of references when working with ranges or arrays. Understanding these uses can significantly enhance your ability to troubleshoot and create effective formulas in Excel. निष्कर्ष संक्षेप में, एक्सेल में हैश चिन्ह कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। नंबर एक, त्रुटि संकेतक। यह फॉर्मूले में विभिन्न त्रुटि प्रकारों को दर्शाता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को शून्य से विभाजन या गुम मान जैसी समस्याओं का निदान करने में मदद मिलती है। नंबर टू, डायनेमिक एरे हैंडलिंग। डायनेमिक एरे का समर्थन करने वाले एक्सेल संस्करणों में यह उपयोगकर्ताओं को एरे फॉर्मूले से सभी परिणामों को संदर्भित करने की अनुमति देता है। नंबर थ्री, संरचित संदर्भ। तालिका संदर्भों में यह संरचित तालिकाओं के भीतर शीर्षलेख या संपूर्ण स्तंभ जैसे विशिष्ट तत्वों को इंगित करता है। नंबर फोर, श्रेणी संदर्भ। इसका उपयोग श्रेणियों या सरणियों के साथ काम करते समय कुछ प्रकार के संदर्भों को दर्शाने के लिए भी किया जा सकता है। इन उपयोगों को समझना एक्सेल में समस्या निवारण और प्रभावी फॉर्मूले बनाने की आपकी क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। Thanking you all for listening me patiently. If you found this tutorial helpful, don't forget to like, share, comment and subscribe and hit the bell icon for more tech tips and Excel tricks tutorials. मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको यह उपयोगी लगा तो अधिक तकनीकी ट्यूटोरियल के लिए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और घंटी आइकन दबाना न भूलें।